A massive fire did engulf Ghazipur landfill. Now, this is not, of course, the first time that we're seeing this. Fire tenders, of course, are on the spot dousing the fire. In terms of reactions that have come on that front, RLD leader Jayant Singh tweeted about the incident and called it a systematic failure. Remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had earlier promised to clear this landfill by December 31st, but instead, more waste has been added to it. अरविंद जी, 16 से 17 घंटे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक यहाँ पे आग लगी हुई है। पॉलिटिक्स इस पे होती है। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव लड़ी और उन्होंने कहा था कि इस मेस को हम क्लियर करेंगे, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के लोगों की। लेकिन बार बार यहाँ पे आग लगती है और ये कूड़े का पहाड़ जितना था उतना ही है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये कूड़े का पहाड़ उतना नहीं है जितना था। ये देखिए, इधर एक तीसरा पहाड़ भी उठने लगा है। ये देखिए, ये एक तीसरा पहाड़, नया पहाड़ उठने लगा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि इसी गाजीपुर पे हमने लाल कारपेट बिछा के मुख्यमंत्री को 2021-22 में आते हुए देखा था और वादे किए गए थे कि 31 दिसंबर 2023 तक ये हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ गैस रिसाव जो होता है उससे लड़ने की बातें भी की गई थी, मगर 1.5 साल की नगर निगम की सत्ता के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह है हमारी शिकायत। हमारी शिकायत हम राजनीति करने नहीं आए हैं यहाँ, हमारे अध्यक्ष यहाँ राजनीति करने नहीं आ रहे, मगर सवाल है कि जब आग लगी तो यहाँ कोई इंतजाम क्यों नहीं था। जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। Well, it's been 16 hours that the fire started over here at Ghazipur landfill site, but you can still see that how a huge layer of smoke has completely engulfed the Ghazipur landfill site. And if my camera person can show you towards that, the fire is still not doused. The fire tenders have been here since last night, late evening, but still we can see that how some flames are coming from this particular Ghazipur landfill site, and the people over here complain that they're not able to breathe, that there's constant irritation in their eyes. Now, the fire over here started at around 5:30 p.m. yesterday, so you can imagine if fire tenders are working continuously since last evening and still the fire is not doused. The amount of fire and the amount of smoke that have completely gone over this area is massive. Now, this is not the first time that the fire has broken out over this landfill site in Ghazipur. In fact, in 2022, it took almost 50 hours to douse the fire over here, and this particular landfill site has also been the bone of contention when it comes to the politics. We also know for a fact that how the BJP says that the Aam Aadmi Party fought MCD elections in 2022 by showing picture of this Ghazipur landfill site. Arvind Kejriwal himself came over here and stated that they will clear the mess of this particular area. That is, they will ensure that this tower, this mountain, if I may say, of garbage will be cleared by 2024. By 2023, but that has not taken place. All right, that is, of course, essentially the ground report and the political reactions that we showed you. But remember, there are, of course, health implications of the same as well. So let's listen into some of the reactions that did come in from citizens. इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहूँ कई तो सांस की वजह से चल बसे। पिछली बार तो इसमें आग लगी ना तो गिर गया खत्ता, बहुत आदमी मर गए थे, बहुत आदमी। पूरी गलियों में धुआं था और सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम थी कि खांसी हो जा रही थी बार बार, और पहले से ही मुझे मतलब थोड़ी सांस की है बीमारी। अब आँखों में चुभन और गले में दिक्कत, खराश, और ये मान लो कि ज़िंदगी इतनी सस्ती कर दी है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। एक तो ये अपना आग लगा देते हैं यहाँ पे, और हर 6 महीने जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आग लगती रहेगी।
अब इसका कोई उपाय कर नहीं रही है गवर्नमेंट। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ है ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं। और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता, इतना प्रदूषण फैल रहा था सुबह। और आग लगने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आने जाने जो लोग हैं, उनके लिए आने जाने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और रात सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है सांस लेने में। इसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। आपराधिक लापरवाही है दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार की। दिसंबर 2023 का वादा किया था अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कि निगम की सत्ता हमें दे दीजिए, हम पहाड़ खत्म कर देंगे। कूड़ा जितना होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, नहीं हो रहा है। ठेकेदारों की मिलीभगत है, काम बिल्कुल हो नहीं रहा। अधिकारी कह रहे हैं कि अचानक गर्मी बढ़ गई। अभी तो अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई बाकी है। सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, एक गाड़ी खराब पड़ी है। इसकी हालत भी अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह है, डायलिसिस में है। Massive fire did engulf Ghazipur landfill. Now, this is not, of course, the first time that we're seeing this. Fire tenders, of course, are on the spot dousing the fire. In terms of reactions that have come on that front, RLD leader Jayant Singh tweeted about the incident and called it a systematic failure. Remember, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had earlier promised to clear this landfill by December 31st, but instead, more waste has been added to it. अरविंद जी, 16 से 17 घंटे हो चुके हैं, फिर भी अभी तक यहाँ पे आग लगी हुई है। पॉलिटिक्स इस पे होती है। बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव लड़ी और उन्होंने कहा था कि इस मेस को हम क्लियर करेंगे, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के लोगों की। लेकिन बार बार यहाँ पे आग लगती है और ये कूड़े का पहाड़ जितना था उतना ही है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये कूड़े का पहाड़ उतना नहीं है जितना था। ये देखिए, इधर एक तीसरा पहाड़ भी उठने लगा है। ये देखिए, ये एक तीसरा पहाड़, नया पहाड़ उठने लगा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि इसी गाजीपुर पे हमने लाल कारपेट बिछा के मुख्यमंत्री को 2021-22 में आते हुए देखा था और वादे किए गए थे कि 31 दिसंबर 2023 तक ये हट जाएगा। उसके अलावा यहाँ गैस रिसाव जो होता है उससे लड़ने की बातें भी की गई थी, मगर 1.5 साल की नगर निगम की सत्ता के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह है हमारी शिकायत। हमारी शिकायत हम राजनीति करने नहीं आए हैं यहाँ, हमारे अध्यक्ष यहाँ राजनीति करने नहीं आ रहे, मगर सवाल है कि जब आग लगी तो यहाँ कोई इंतजाम क्यों नहीं था। जो वहाँ हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं। जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है।